Introduction to Public Policy. So here we are going to study the meaning of public policy, the features of public policies, and the different types of public policies. So here are some, you can say, definitions or the meanings of public policies. There are different definitions in different books, in different courses, but I have selected some of them which I found the most easiest for your level. So I'm going to start with the last definition, which, according to my point of view, is very important and which is very appropriate. So let's start with the last definition. Public policy is the output of political system through policies intended societal goals are achieved. You must have already studied about public policy in your previous semester, that what public policy actually is. Political system is one of the most important systems. Political is the activity in the public sphere, a competitive behavior to acquire the power to implement some policies to do the good. To do the good of the community. इन सब में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप पावर एक्वायर करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सोसाइटी टू ब्रिंग समथिंग गुड इन द सोसाइटी. आप किसी भी सोसाइटी के अंदर कोई अच्छा काम करें, कोई अच्छी चीज़ लेके आएँ सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए, सोसाइटी के ग्रोथ के लिए. फाइन. एंड this can only be brought through the public policies. So, public policies are the basic instrument of making goals achieved by acquiring power. This was the last definition, and I think this is the most appropriate and most important definition. So now, we'll start from the beginning, coming towards the first definition. Now I'm going to start with the first definition. So, the first definition is a relatively stable definite course of action decided by an public authority in dealing with a problem or matter of public concern. ये किसी भी किस्म का एक्शन है. It is relatively and it is very stable. ये टाइम के साथ फैकल नहीं होता. What does the word फैकल means? फैकल means बदलता नहीं है. और एक definite path जो है डिसाइड किया जाता है by the public authority. Public authorities कौन हैं? They are the government officers or whoever which are not the public authorities. Now, coming towards the next definition, which is whatever government choose to do or not to do about problem that comes before them for consideration and possible action. गवर्नमेंट जो भी करती है पब्लिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करती है. फाइन. दिस इज वेरी इजी एंड दिस इज, ये पढ़ के ही आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है. इसके अंदर कुछ भी नहीं है. इसके अंदर सिर्फ ये बताया गया है कि गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो पब्लिक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करती है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेफिनेशन, which is collective decision making process to solve public problems. As it can be understood as a collective political decision making process to solve the problem, it is a collective decision
आप अपने लिए डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना। अपने लिए तो सारे डिसाइड करते हैं ना कि आपने क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना, लेकिन यहाँ पे इट्स डिफरेंट। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपने पूरी सोसाइटी के लिए एक कलेक्टिव डिसीजन लेना है। एक कलेक्टिव डिसीजन लेना है कि कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना, और कौन जो भी प्रॉब्लम अकर हो रही है उस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है। ये एक कलेक्टिव डिसीजन होगा। फाइन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। So here we have the features of public policy. The first feature is policy is to solution to issue or problem that are brought on the agenda of government and requires attention. The most important feature is that public policy is a solution. ये solution है किसी भी प्रॉब्लम का जो कि सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हंगर एक सोशल प्रॉब्लम है। ये बहुत से मुल्कों में हंगर एक सोशल प्रॉब्लम है। तो हम इसमें डिफरेंट कंट्री से एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई कि वो मिड डे मील्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। फाइन। तो ये क्या हुआ, ये उन्होंने एक प्रॉब्लम का सलूशन देखा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं दैट पॉलिसीज आर नथिंग बट दे आर द प्रॉब्लम्स टू द सॉल्यूशंस। पॉलिसीज कुछ भी नहीं है। ये क्या है, ये बस जो आपकी लाइफ में या जो आपकी कंट्री में, नॉट इन योर लाइफ यू कैन से, जो भी आपकी कंट्री में प्रॉब्लम्स चल रही हैं या जो भी आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमिक आपके उसके अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको किस तरह से सॉल्व करना है। दीज आर द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। नाउ coming towards the next feature is policy may be in form of laws or regulation, plans, programs, schemes, guidelines, codes, or combinations of these. Now we can say that policies may be in the form of laws or regulations. For example, any act. Different plans जो government बनाती है, like community development plan and etc. जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं या मिशंस हैं या स्कीम्स हैं, these all are policies. Sometimes policies are in form of guidelines कि आपको ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब पॉलिसीज़ आपको, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पॉलिसीज़ आपको सिर्फ गाइडलाइंस देती हैं कि आपको ये करना चाहिए तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा, और आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। समटाइम्स जो है पॉलिसीज़ आपको कोड्स भी देती है, जैसे कि फार्मिंग पॉलिसी कोड्स हो गए। फाइन। Now moving towards the third policy. Policy, what government actually does, not just what intended to do. आप याद रखें कि पॉलिसी जो है वो एक्शन कॉन्सेप्ट है। ये गवर्नमेंट का विजुअल कॉन्सेप्ट है कि हम ऐसा काम करेंगे। तो ये क्या हुआ, ये एक एक्शन ओरिएंटेड पॉलिसी हुई। ठीक है, इसके अंदर आप प्लान्स बनाते हैं, आपके जो भी प्लान्स होते हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, या आपके जो भी प्लान्स होते हैं, जो भी डिसीजंस होते हैं, वो सारी पॉलिसीज ही होती हैं और उनको आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं। Now moving towards the next feature. Policy is sustained course of action taken over time, not discrete decision. एक पर्टिकुलर डिसीजन जो है
गवर्नमेंट का जो डे टू डे डिसीजन होते हैं वो पब्लिक पॉलिसीज़ नहीं होती। पब्लिक पॉलिसी जो है वो एक सस्टेन्ड कोर्स ऑफ एक्शन है। Now, coming towards the next feature, policy output versus policy outcomes. And आप देखें output और outcomes। जब आप evaluation देखेंगे तो evaluate कैसे करते हैं पॉलिसी को, हम उसकी आउटपुट देखते हैं और आउटकम देखते हैं। नाउ यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि बेसिकली आउटकम और आउटपुट है क्या। तो आउटपुट इज द measurable फिजिकल रिजल्ट ऑफ पॉलिसीज। जैसे कि हम वही एग्जांपल ले लेते हैं मिड डे मील। तो जो मिड डे मील है आपको इसका आउटपुट कह सकते हैं कि इस तरह मिलेगा कि पूरे मुल्क में कितने बच्चों ने कितने मील्स लिए हैं या उनको कितने मील्स मिले हैं। अब इसका आउटकम जो है वो ये है जो कि एक फिजिकल आउटपुट की सूरत में नहीं होता। हम इसी मिड डे मील की एग्जांपल ले लेते हैं कि जितने भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने ये मिड डे मील जो है वो कंज्यूम किया है, तो उससे उनकी न्यूट्रिशनस वैल्यू जो है वो कितनी बड़ी है और उनकी हेल्थ जो है वो कितनी इम्प्रूव हुई है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब इस पे क्या है, हु मेक्स पब्लिक पॉलिसी। लेजिस्लेटिव्स जो हैं वो भी पब्लिक पॉलिसीज़ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो भी पब्लिक पॉलिसीज़ बनाते हैं, जुडिशरी जो है वो भी पब्लिक पॉलिसीज़ बनाती हैं। To talk about that, who implements and evaluate public policies। वो कौन हैं जो कि पब्लिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और इवेल्युएट करते हैं। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द पब्लिक पॉलिसीज़। अब इसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव्स जो हैं जो गवर्नमेंट के सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हो या पब्लिक ऑफिशियल्स हों या अर्बन लोकल बॉडीज़ हों या PSUs हों या रेगुलेटरी बॉडीज़ हों, ये सारे ऑफिशियल्स जो हैं ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ये जो हैं ये इम्प्लीमेंट करते हैं पब्लिक पॉलिसीज़ को। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि इनको इवैल्यूएट कौन करता है। जो पॉलिसी एनालिस्ट होते हैं जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं, इसमें मीडिया भी आ जाता है, मीडिया भी इवैल्यूएट करता है, और इसके अंदर फिर पॉलिटिकल लीडर्स भी आ जाते हैं जो कि टॉप पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो भी इवैल्यूएट करते हैं। Now we'll study main actors in public main actors in policy making process। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट है दैट इज पॉलिसी एक्सपर्ट लाइक पॉलिसी कम्युनिटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिसी कम्युनिटी ये लोग हैं
जो कि एक तरह के छुपे हुए लोग होते हैं, ये आम लोगों से छुपे रहते हैं, लेकिन इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कि पॉलिसीज़ बनाने में इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, जैसे इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड ओवर हेयर, इस पे हमारे पास डोमेन एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस आ जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स आ जाते हैं, मैथ लीडर्स आ जाते हैं, सिविल सोसाइटीज़ आ जाती हैं। फिर इनका दूसरा मेन एक्टर कौन है? इनका दूसरा मेन एक्टर जो है वो है पॉलिटिकल लीडर्स। पॉलिटिकल लीडर्स अब क्या होते हैं? पॉलिटिकल लीडर्स वो होते हैं जो कि डिसीजंस लेते हैं, जो सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स लेते हैं। और जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं, whatever policy is going to be made or whatever policy is going to be implemented, that will be decided by the political leaders। अब political leaders में कौन आ जाते हैं? पीएम आते हैं, सीएम आते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स आ जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास अगला एक्टर कौन है? अगला हमारे पास होते हैं एग्जीक्यूटिव्स एंड ब्यूरोक्रेसी। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपको पता है कि टॉप लेवल सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो पॉलिसी बना जो पॉलिसी बनाते हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। और एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो तो 100% पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में उनका एक वाइटल रोल होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट एक्टर कौन सा आ जाता है? वो मीडिया है। मीडिया में क्या आ जाता है? मास एंड सोशल मीडिया। दिस इज़ वेरी इजी एंड इट इज़ वेरी मच क्लियर कि मीडिया में क्या क्या आता है, ये तो आजकल हर किसी को ही पता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अरीना ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के कहाँ पे पॉलिसी मेकिंग बनती है, उसकी बेसिस पे आप करते हैं लेजिस्लेटिव पॉलिसी, जिस लेजिस्लेशन जिस लेजिस्लेशन बन जिसमें लेजिस्लेशन बनती है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं जो एक्सपर्टीज़ बनाते हैं, और जुडिशरी पॉलिसीज़ हैं, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है। पॉलिसी इश्यूज, अब पॉलिसीज इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं? वो एजुकेशनल इश्यूज हो सकते हैं, वो फॉरेन इश्यूज हो सकते हैं, वो डिफेंस इश्यूज हो सकते हैं, वो इकोनॉमिकल इश्यूज हो सकते हैं, और तमाम तरह के सब्जेक्ट मैटर्स से आप जोड़ दें तो वो पॉलिसी हो जाएंगे। सब्सटैंसिव वर्सेस प्रोसीजरल। अब सब्सटैंसिव वो रियल टारगेट ग्रुप्स हैं जिनका डायरेक्ट असर पड़ता है, लाइक मटीरियलिस्टिक असर पड़ता है, या बेनिफिट होता है, या कॉस्ट एसोसिएटेड होते हैं। अब प्रोसीजरल क्या होता है? प्रोसीजरल पॉलिसी में कोई इस तरह का लॉस या बेनिफिट नहीं होता जो टारगेट ग्रुप या अदर पब्लिक को इफ़ेक्ट करते हैं। ये बेसिकली एक प्रोसीजर है कि पॉलिसी को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके क्या मीन्स होंगे, और इसके इसकी बजटिंग क्या होगी। रेगुलेटरी वर्सेस सेल्फ रेगुलेटरी। अब रेगुलेटरी पॉलिसी क्या होती है?
रेगुलेटरी पॉलिसी ये है, ये रेगुलेट करती है गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट को, जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल कंट्रोल एक्ट एंड मेनी अदर कंट्रोल एक्ट। और सेल्फ रेगुलेटरी क्या होता है? सेल्फ रेगुलेटरी है कि जब आप किसी सेक्टर को टाइट रेगुलेट नहीं करते, आप उसके अंदर के जो रेगुलेशंस हैं उसको इवॉल्व करते हैं, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड मीडिया काउंसिल। I'm sorry I missed one point, that was distributive and redistributive। अब डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ क्या होती हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव ये है कि जितने भी यूनिवर्सल इनकम है उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसको कितने कितने रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ क्या होती हैं कि अमीर लोगों से लेके आप गरीबों में दें, ये होती है रीडिस्ट्रीब्यूटिव। मटीरियल वर्सेस सिंबॉलिक। अब मटेरियल क्या होता है? लाइक मटेरियल पॉलिसीज़ क्या होती हैं? मटेरियल पॉलिसीज़ वो होती हैं जिसमें एक्चुअल रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि पैसे या कोई भी मटेरियल। और फिर अब सिंबॉलिक पॉलिसीज़ क्या होती हैं? सिंबॉलिक पॉलिसीज़ वो हैं उसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज़ ओनली यू कैन से posturing, that is only a posturing which is only symbolic। वो सिर्फ एक symbolic होता है, symbolic nation होती है। फाइन, जैसे कि इसकी हम एग्जांपल ये ले लेते हैं कि नेशनल एंथम इन सिनेमा हॉल्स। आप कहीं भी जब आप एक मूवी देखने जाते हैं, whenever you go to the whenever you go to the cinema hall or you visit such kind of a place, तो क्या होता है, मूवी स्टार्ट होने से पहले नेशनल एंथम होता है। फाइन, तो इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती, ये टोटली जो है ये मॉरलिस्टिक होता है। The next feature is the last feature is actually the last feature is policies involving public goods versus private goods। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जिसमें एक आदमी अगर यूज़ करता है तो दूसरे आदमी को कम नहीं होता। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, पार्क्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, ये सारी जो हैं ये पब्लिक गुड्स हैं। और पब्लिक गुड्स में क्या होता है? पब्लिक गुड्स में फीस नहीं होती। पब्लिक गुड में कोई भी जा सकता है, उसको कोई भी अवेल कर सकता है। लाइक अगर आप एयरपोर्ट पे गए हैं या आपने किसी पार्क को विजिट किया है, तो nobody has the right or nobody has the authority to ask you that why you are here, why you are here on the airport, why you are roaming around in a park। फाइन, तो पब्लिक गुड्स ये होते हैं। अब प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं? प्राइवेट गुड्स ये होते हैं जिस पे आपको फीस देनी होती है। आप फीस देते हैं और आप उन गुड्स को अवेल कर सकते हैं। वो गुड्स भी हो सकते हैं, वो सर्विसेज भी हो सकती हैं। लाइक व्हेनेवर यू गो टू सिनेमा हॉल, तो उससे आप क्या करते हैं? आप टिकट परचेज करते हैं, आप एक फ़ी देते हैं एंड यू कैन एंटर इनटू अ सिनेमा हॉल। इसी तरह डिफरेंट म्यूजियम्स हैं, उसमें क्या होता है, एक एंट्री फीस होती है, वो आपको पे करनी पड़ती है। आप पे करते हैं तो यू कैन गो एंड विजिट द म्यूजियम। In this lecture we have studied the meaning, like the definition of public policies. We have studied the features of public policies, and we have studied different types of public policies.